Hey, Shudaj, you there? Yes. Good morning, good evening. How are you? Yes. हमें कुछ खाना खिलाना पड़ेगा सॉलिड. अरे You appear to be a very tired man, just like me. My eyes are killing me. All right, so we will start chemistry today, and we will start the chapter number 3. ठीक ठीक है जी? Okay, let's first address, if you've done this in your class somehow, what are the some of the things you would like to discuss? We can go one by one, but if there are certain things we can start with, you can let me know. तो मैं वो नहीं बताऊंगा आपको मेंटल लीव वगैरह. आई थिंक दैट इज प्रीटी यूजलेस. ठीक है. और आई पुट सम एंटीबायोटिक इन माय आईज टुडे. मुझे पता नहीं, आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है. वो ड्राइनेस की वजह से है या कंजंक्टिवाइटिस है, पता नहीं, बट मैंने डाल लिया है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द discussion on the, we'll directly go to the modern periodic table. ओके Okay, and I think a lot of this is memory based, and so a discussion will be more handy than trying to write down everything. I think उससे कोई कुछ खास मिलेगा नहीं हमको. So let's, what we do is we straight away go to the modern periodic table and start discussing it. ठीक है. All right, let's start the discussion with the, okay, so just tell me जेई में what is आएगा your, ये क्या? जेई में आएगा Yes, 100%. जेई का बहुत एग्जॉस्टिव होता है, बहुत ज्यादा होता है. बट आपके स्कूल में मुझे मालूम नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी कराई होगी, उसके आगे तो क्या ही कराया होगा. राइट, वुड नॉट गो बियॉन्ड दैट. बट आई विल सी, क्योंकि हमारा फिर वो स्कूल के चक्कर में वी विल हैव टू मिस आउट द टॉपिक्स एंड कवर देम लेटर, बिकॉज इफ यू डू इट then it will take a lot of time to cover. This is a very lengthy, with practice and with JE questions, etc. It becomes a very lengthy chapter to handle. School level, NCRT and all that is also not easy, but comparatively short हो जाता है. होता सेम है, फर्क डिटेलिंग का है, दैट्स ऑल. टॉपिक वही होगा, but detailing is going to be very different. All right, so let's start with the periodic table discussion. Broadly, what is your understanding of the periodic table? Let's start with that. What do you make of the periodic table? पीरियड वाइज एलिमेंट्स को लगा रखा Okay, so period wise का मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल में लगा रखा है. ग्रुपिंग, ग्रुप्स नहीं होते इसमें. है ग्रुप्स के लाइक अकॉर्डिंग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग या पीरियड्स के अकॉर्डिंग? ग्रुप्स एंड पीरियड्स दोनों Yes, दोनों, right? So they are both actually. That is correct. All right. Let me just be very specific in questioning so that you grip the point. Okay, सबसे पहले हम इसको grasp करने की कोशिश करते हैं कि, so I'm not getting into the details of Mosley and all that. Okay, मेंडलीव ने बोला था कि सारा जो periodic table है, it is based on atomic weight. बेंडली वॉज नॉट राइट. मेंडलीव के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ मॉजले का. मॉजले ने एक्सरे से पता लगा लिया कि एटॉमिक नंबर इज मोर इम्पोर्टेंट. बट उसके बाद जो काम हुआ वो ये पता चला, एटॉमिक नंबर इज फाइन, बट एक्चुअली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स definitely depend on the atomic number, but the properties which are exhibited are not dependent on the proton number, right, which is generally equal to the number of electrons. Actually, the properties of the elements are decided by the electronic configuration of the valence shell. जो बाहर वाले जो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उस वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर जनरली contributing towards the chemical reaction. So modern periodic table is based on on this fundamental only. The properties which are exhibited, they can be physical properties,
size of the radius. They can be chemical properties, which is bonding and all that. Oxygen के साथ कैसा होगा? All of this is controlled by the electronic configuration. So finally, everybody has agreed on only one principle, that atomic number is not the whole soul, which Mosley said. It is actually the electronic configuration which is going to decide those physical and chemical properties. Okay, tell me one thing, how many periods are there in the modern periodic table? And what do they signify? How many periods are there? 7. Horizontal. There are 7 horizontal lines in a modern periodic table. And how many groups are there? 4. 18. 18. Yes, there are 18 groups starting from 1 to 18. लास्ट में इनर्ट गैस होती है, राइट साइड में बिल्कुल एक्सट्रीम पे नियॉन, आर्गन वगैरह वगैरह. So the number of groups you're talking about is 18. So you're talking about a matrix of 7 into 18. 7 horizontal lines and 18 vertical row columns. You can call them columns. जो आएंगे. How are the periods labeled? What is a period referring to? If I am in a period 5, I am an element. What does 5 signify? What does it signify? The principal quantum number. The principal quantum number. Okay. So the period number is same. तो अगर मैं period number 6 में हूँ, तो period number 6 के अंदर when I write the configuration, and I write the electronic configuration, but I write the electronic configuration of the valence electrons, which is what is going to decide. So I'm not going to write everything. The last shell of those valence electrons in the 6th period will tell you that jitne bhi 6th period mein. Do you have a periodic table in front of you? Any book, anything you can see in your Yes, book? sir. Okay. अब उसको देखते रहो. 6th period कहाँ से start हो रहा है? Cesium. Cesium. 6th period, छठी row, horizontal row. Atomic number 55. Yes, sir. ठीक है. और उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जो लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, जो प्रॉपर्टीज 6s1. 6s. दिख रहा है? Yes, sir. और लास्ट में देखो कौन सा है इसमें, नोबल गैस कौन सी है? सर ऑर्गेनाइजोन है. आप मेरे ख्याल से फिर सीजियम नहीं लास्ट देख नंबर रहे, गैस ना. फ्रैंकियम देख रहे हो. आप पीरियड नंबर 7 देख रहे हो, मैं पीरियड नंबर 6 बोल रहा हूँ. अच्छा, रेडॉन. राइट. इसका भी जो कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी तो कोई प्रॉपर्टी होने नहीं वाली है क्योंकि बहुत ही स्टेबल है. लेकिन आपको नजर आ रहा है जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें जो लास्ट शेल है वो 6 है. यस सर. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ आई एम सेइंग आई एम इन पीरियड नंबर 4, then my valence electrons are in which shell? 4s. Correct. Not 4s, it can be p also. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s का तो मतलब हो गया ऑर्बिटल भी बोलना शुरू कर दिया आपने, बल्कि पीरियड इज ओनली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अग्रीड? अब समझ आ गया? Alright. So first of all, you should know the labeling of the periodic number across, and across means essentially the outermost shell is being referred to. That's all, nothing more than that. All right, now let's go to the other part, which is when you go down the table, and when you go down the table, you see the groups. Okay, so first you see the first two groups, then 3 to 12, then 13 to 18. Okay, so if you refer to the groups, now there are 18 groups. Now, if I tell you I am in a group 1, what is the basis of saying I'm in a group 1?
द बेसिस फॉर पीरियड बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 1. हाँ, इफ आई एम इन अ ग्रुप 1, Yes. व्हाट मेक्स ऑल, कौन से वो एलिमेंट इकट्ठे करके आप रखोगे जो ग्रुप 1 में डालने के लायक है? व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द Hydrogen or कॉमनैलिटी? helium? हाँ, Hydrogen or helium? हाइड्रोजन एंड हीलियम. ग्रुप 1 is, अच्छा, group 1, sorry. you are in 18 now. If you say helium, I am just referring to very simple कि नहीं, मैं हाइड्रोजन से लेकर रेडियम तक. से लेके रेडियम, हाइड्रोजन से लेके रेडियम, नहीं नहीं, ग्रुप नंबर 1. हाइड्रोजन से फ्रांशियम. दैट इज करेक्ट. ग्रुप्स आर वर्टिकल, नीचे की तरफ जाते हैं. ओके. इनको ओके. सबको इकट्ठा के कैसे रखा, किस बेस पे रखा? पीरियड का तो पता चल गया, आउटर आउटर शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यस. इनमें क्या हुआ? ये कैसा इसमें जो रहेगा? इलेक्ट्रॉन था, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप नोट करोगे, 1 है. सबका S1 है. S1. S1. S. यहाँ पे क्वालिटी है ऑर्बिटल वाली. जब ग्रुप्स की बात होती है तो ऑर्बिटल आ जाते हैं. ठीक है. सब S1 है. ओके. ये पहले दो पैटर्न्स ग्रुप्स. है. हाँ, पैटर्न. एग्जैक्टली. अच्छा. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी लिख के देखी, फिर उनको क्लब करना शुरू कर दिया ठीक है. और बोला कि प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय द लास्ट शेल एंड द लास्ट पेनल्टीमेट जो होता है, जिसको बोलते हैं मे बी वन वन लेस देन दैट. पेनल्टीमेट इज अ सेकंड रनर अप, राइट? इट्स अ रनर अप पेनल्टीमेट. तो या तो प्रॉपर्टी डिसाइड होती है आपके, जिसमें आपका जैसे एस के अंदर अगर आप देखोगे पहले दो ग्रुप्स में, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? S1 S2 है. S1 S2. ग्रुप यस. नंबर 2 में देखो क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन. सर ग्रुप नंबर 2 में S2. S2. लेकिन स्ट्रॉन्शियम और बेरियम और रेडियम में 1 ही आ रहा है. लेकिन ब्रॉडली मेथड ये होता है कि जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है वो उसमें SC होता है, एक्सटर्नल ऑर्बिटल. ग्रुप ठीक. नंबर 1 2 में द इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिजाइड इन व्हाट? दे रिजाइड इन द फर्स्ट टू, ओनली इन S ब्लॉक, S ऑर्बिटल. तो इन इन दोनों ग्रुप्स को बोलते हैं S ब्लॉक ग्रुप्स. ये दोनों को, इनका ग्रुप इकट्ठा करके ब्लॉक बना देते हैं, इनको बोलते हैं S ब्लॉक. अगर मैं आपको बोलूं S ब्लॉक में सबसे बड़ा S ऑर्बिटल कहां पे होगा? फार्देस्ट. रेडियम. 7S. यस. रेडियम. करेक्ट. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऑफ प्रिंसिपल के बेसिस पे, यू विल गेट दैट आंसर. राइट. ओके. ऑलराइट, लेट्स नाउ डिस्कस, सो दैट आई हैव टू पुट दिस इन योर माइंड, क्योंकि थोड़ा मेमोरी बेस्ड होता है, इसलिए इस तरह की डिस्कशन है बेसिकली. ओके, एक और पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ पीरियड्स का. ओके, आई एम कमिंग बैक टू द पीरियड. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड? 2. करेक्ट. इट इज कॉल्ड अ वेरी शॉर्ट पीरियड. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेकेंड एंड थर्ड? काउंट देम. बीच में गैप मिलेगा आपको. पी ब्लॉक में कुछ नजर नहीं आएगा. सेकेंड और थर्ड में अगर आप जाके देखोगे, सॉरी सेकेंड में, सेकेंड और थर्ड में अगर आप देखोगे, बीच में गैप है, खाली है, डी ब्लॉक. सर 16 एलिमेंट्स है 2 और 3 में मिला के. 8 और 8, 8 एंड 8. हाँ जी. यस सर. राइट, बिल्कुल ठीक बात है. और अगर मैं आपसे, तो इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स. दीज आर शॉर्ट पीरियड्स. नाउ ओके. माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द फोर्थ एंड फिफ्थ? फोर्थ पीरियड में बिल्कुल एंड टू एंड कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट कर लो. 18, 18 18. 36 टोटल. टोटल. तो ये जो 18 ईच है, दीज आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स. तो सबसे ऊपर आता है वेरी शॉर्ट तो पीरियड. 6 और 7 भी लॉन्ग पीरियड्स है. दे आर कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियड्स. सर इनमें भी तो 18 ही एलिमेंट्स है. नहीं, इनके 14 नीचे भी दे रखे हैं अलग से एफ ब्लॉक के अंदर नीचे. अच्छा अच्छा. तो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना टेबल, तो इन्होंने उठा के यहाँ लिख दिया उसको, और थोड़ा सा डिफरेंस भी है.
तो वो 14 14 है, तो टोटल 32 32। तो अगर आप इसका पैटर्न देखो तो पैटर्न इज 2 8 8 18 18 32 32। राइट, ओके। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पहले दो थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। इफ यू हैव टू टेल मी अ जनरल एड्रेसिंग of the external valence electron, which will include the principal quantum number as well as the orbital, तो क्या होगा? जनरल एड्रेसिंग कैसे लिख सकते हैं? सर लास्ट की जिस भी पीरियड में हो वो लिख दो n। बैलेंस शेल एस ऑर्बिटल में होनी चाहिए। करेक्ट। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लग जाएगा n। हाँ जी। तो n तो सर s ऐसे तो और बहुत s सारे के, सर एस ब्लॉक में तो। हाँ, लेकिन जनरल एड्रेसिंग क्या होगी इसकी n की टर्म्स में? n s और s के ऊपर 1 to 2। मैंने अगर आपको कोई भी एड्रेस लिखना है सेवेंथ ब्लॉक, इस ब्लॉक दोनों ब्लॉक्स में एस का, तो यू विल राइट इट एज एन एस 1 - 2 1 to 2। इट इज नॉट माइनस। मतलब एन का मतलब होगा पीरियड लिख दो 6 एस, या इलेक्ट्रॉन 1 होंगे या 2 होंगे। एक जनरल एड्रेस है इसका एन एस, एस के ऊपर 1 to 2, that there will be either 1 electron or 2 electrons, and then you can write choose the period and get the एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कि वो कहाँ लोकेटेड है इसके अंदर। इफ ऑलराइट, ऑलराइट, इफ आई टेल यू सर हाँ ये क्या कहते हैं, पोटेशियम में 4s1 लिखा हुआ आउटर मोस्ट में, ठीक है, बट जो एनर्जी होती है 4s की वो 3d ऑर्बिटल से कम होती है। ओके। बट डी ऑर्बिटल क्यों नहीं लिखा उसमें, कहाँ पे? लाइक आउटर मोस्ट में पोटेशियम की? पोटेशियम, वेर आर यू रेफरिंग टू? एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19, वेट, 19 आ गया आपका, पोटेशियम आ गया, ठीक है। हाँ, ये डी ऑर्बिटल में क्यों नहीं लाई करेगा? इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 4s में है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बट कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी पड़ेगी ना यार। आप नहीं इसका सर, लिखना शुरू करना, ये हो जाएगा 2 8। सर डी डी बाद में आता है क्योंकि डी की एनर्जी ज्यादा होती है एस से। हाँ, तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को भरते हुए लोअर एनर्जी में जाएंगे ना। ऑफ वही वो प्रिंसिपल के हिसाब से द फिलिंग विल हैपन एज इन द व्हाट? लोअर एनर्जी, तो डी ऑर्बिटल में आना पहले चाहिए ना राइट डाउन पहले। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस विल फॉलो सर इलेक्ट्रॉनिक 1s2, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, सर 1s2, हाँ, 2s2, हाँ, 2p6, हाँ, 4s, 4s2। करेक्ट। कितने हो गए? 4s2 तो हो ही नहीं सकता, 3 आएगा ना अब, 3s2, 3s2। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 9। 3p6। हाँ जी, नहीं कितने हो 3p, गए? हाँ, कितने हो गए? 18। हाँ, ओके 4s1। राइट। ठीक है ठीक वो इट हैज टू ओबे दैट, यू कांट वायलेट योर इलेक्ट्रॉनिक है। यू नो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो रूल को वायलेट करके नहीं भर रहे हैं हम इसको, वी फॉलोइंग द ऑफ ऑफ प्रिंसिपल, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, बट गुड क्वेश्चन, दैट्स द वे यू नीड टू थिंक। थिंकिंग सारी ऐसी होनी चाहिए अराउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी सब नंबरिंग है, बड़ी आराम से डिस्कशन हो जाए। लिखने से कुछ याद नहीं होने वाला, इसको मैं लिखता जाऊंगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ डिस्कस करोगे, देखते रहोगे, तो परमानेंट दिमाग में बैठ जाता है। दैट्स द वे आई हैव स्टडीड इट एंड दैट्स द वे आई विल लाइक टू टीच इट। और लिखने से कुछ नहीं होगा, वो नथिंग, बोर्ड पे लिखता जा रहा है एक आदमी, नथिंग, यू डोंट अचीव एनीथिंग। ओके, माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है, राइट, यस। दे व्हाट्स, क्या नजर आ रहा है उनके बारे में, हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। ओके, बट टेल मी द पोजीशन वाइज, वेयर डू यू सी हीलियम बीइंग प्लेस्ड? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम? दैट्स माय क्वेश्चन। 1s2। रखा कहाँ पे हुआ है उसको?
नोबल गैस इसमें ग्रुप करेक्ट। 18 में। दिस स्पेशल, राइट, स्पेशल केस है। S2 होते हुए भी S में नहीं लिखा। इट्स एस टू। S2, राइट। हाँ जी। इट्स इनर्ट, बट इट्स एन इनर्ट गैस, तो उसको राइट पे लिख दिए जाके। ओके। ओके, टेल मी वेयर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ग्रुप 1। हाँ देखो, लिख रखा कहाँ हुआ है, उसको कैसे रखा हुआ है। रखा कैसे है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहाँ रखा हुआ है। मतलब क्या, मतलब हीलियम के पैरेलल है? लेफ्ट पे। हाँ जी, आमने वन सामने। वन S1। Yes. ठीक है। हीलियम इज ऑल्दो shows it to be 1s 1s2, पीपल से कि इसको वहां डालो सेकंड ए में, वहां नहीं डालना होता इसको। ओके, Okay. सेकंड में डाल दो इसको, सेकंड ग्रुप के अंदर, फिर भी नहीं डालना उसके अंदर। ऑल राइट, व्हाट एल्स कैन आई आस्क यू, व्हिच इज एनी idea what is the name given to the group 1 elements vertically downwards। Vertically downwards. हाँ जी, अगर आप एक, Alkaline metals. नो, Alkalize मतलब। यस, but hydrogen is not to be included। Okay. Next, why are they called alkali metals? क्योंकि अ, Because they react with water to form alkali। What are group 2 elements called as? Although you told me. alkaline earth। That is correct। And why are they called so? ये नहीं पता। क्योंकि जो उनके oxides होते हैं, हाँ जी। they react with water to form the alkali। And why are they called alkaline earth metals? नहीं, ये नहीं। क्योंकि जब वो, इनके जो ऑक्साइड होते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, और ज्यादातर अल्कली जो होते हैं दे आर फाउंड इन सॉइल और अर्थ। दे आर फाउंड इन अच्छा, सॉइल और अर्थ, तभी तो अर्थ सोडियम नहीं मेटल मिलता बोला है इससे? ना। हाँ हाँ, क्यों तुम नमक कहाँ से लेके आते हो तुम। अच्छा, वो तो नहीं। सोडियम क्लोराइड होता है, सॉरी, राइट। और मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि इट रिएक्ट्स, राइट। इनका जो ऑक्साइड है यूं तो पानी, रिएक्ट। अच्छा। है ना, तो वो अपने आप में मेटल का मिलना बहुत मुश्किल है, तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कलाइन जो मेटल्स हैं, हाउ डू दे प्रेफर टू रिएक्ट। पानी के साथ और नहीं नहीं, जनरली, बिकॉज दे वेरी रिएक्टिव, राइट। यू सेड द अल्कलाइन मेटल्स विच आर मे बी ग्रुप ऑफ दीज टू, द अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल, बोथ ऑफ देम, हाउ डू दे लाइक टू रिएक्ट। अगर मैं बात करूं, दे फॉर्म वायलेंटली। मोनोवेलेंट कटायन, दे लूज वन इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ जी। जो उनके s ऑर्बिटल का वन इलेक्ट्रॉन है, 1s1, दे वुड लाइक टू लूज इट। ओके। और जो अल्कलाइन अर्थ है, दे वुड लाइक टू यूज द टू, दोनों के दोनों चले जाए। तो व्हाट इट विल फॉर्म इफ यू लूज एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट डू यू बिकम, कटायन अनायन। अनायन कटायन, है। अच्छा, व्हाट इज, कटा है। भाई ओके। अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, व्हाट टाइप ऑफ, यू विल फॉर्म अ डाइवेलेंट कटायन। अच्छा। Between the two, which is more reactive, alkaline metals, alkali metals, or alkaline earth metals? अल्कलाई। Yes, भयंकर, जबरदस्त। ओके, और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, जो याद करना है। तो इसकी जो मतलब एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक का जनरल एड्रेस क्या होता है। लेबलिंग कैसे करोगे एड्रेस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सटर्नल, मैंने बताया था शुरू शुरू में। पीरियड का नंबर लिखोगे n, ओके। s और रेस टू पावर 1-2, माने एक या दो इलेक्ट्रॉन। वही वन ठीक। एस वन से लेके 7s2 जो भी लिखना है लिख दो। ओके। ओके, ऑल राइट। What else can we study about this block which is of importance? Okay. अरे, ऐसा एक चैप्टर ना पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड हमारे पास 10th में भी था। हाँ हाँ, वही है, थोड़ा सा ऑर्बिटल आ गया, तब ऑर्बिटल था नहीं एक्चुअली। और डिलीट हो गया। हाँ, ग्रुप 1 पढ़ लिया। सीबीएसई। ओके,
तो कर क्या रहे हैं सीबीएसई? आई थिंक इट्स डिलीटिंग लॉट ऑफ टॉपिक्स विच आर गुड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कहीं ना कहीं किसी एंट्रेंस में आते हैं, बट एक के बाद एक सारे टॉपिक डिलीट होते गए रैशनलाइजेशन के नाम पे। एनसीईआरटी ने जो करा या कोविड किसी ने। 19 के चक्कर में हुए थे। वो अब तो नहीं है कोविड, दे शुड ब्रिंग इट बैक। तो आई गेस इनकम्प्लीट जेई में भी नॉलेज के थोड़ा साथ कम लोग जा रहे होएगा। हैं। जेई में भी शायद थोड़ा कम हो सकता है। कभी नहीं हुआ आज तक। जितने जेई अभी तक हुए कोविड के बाद, सब में पूरा सिलेबस आया है। दे हैव कोविड में नॉट ऐसा कैंसिल कॉम्प्रोमाइज्ड। हो गए थे जेई। नहीं, उस टाइम पे हाँ एग्जाम तो हो गए थे, बट सिलेबस जब भी हुआ वो वापस पूरे सिलेबस का हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। नहीं, इसके लिए 2020 में जब चला था आया था तो हाँ। कैंसिल हुआ था जेई। यस, डिले हो गया था बहुत। ऑल राइट, लेट्स गो टू द सेकेंड ब्लॉक। अब देखो, जो आपने थर्ड से लेके 12, सॉरी उनको भी छोड़ देते हैं हम। थर्ड से 12 नंबर जो ग्रुप्स है वो डी ब्लॉक होता है, उसको छोड़ दो। एस के बाद डी आता है, डी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है स्टडी करने का वो है पी ब्लॉक, जो 13 से स्टार्ट होता है और लगभग 17th पे ही खत्म होता है, क्योंकि 18th का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं। इंक्लूड तो आप कर सकते हो 18th को, लेकिन वो ऑक्टेट पूरा हो चुका है और वो inert gases हैं, so really makes no difference. Okay. So what's so special about the p block? The last electron will enter where? In the p orbital, by the name. Any p block element will mean the last electron is going to enter the p orbital. Okay. Now tell me, how many electrons can be accommodated by a p subshell? सर 6। बिल्कुल ठीक बात है। सो हाउ मेनी ग्रुप्स डू यू सी इन द पी ब्लॉक नाउ? क्योंकि पी में जाना है इलेक्ट्रॉन, पी 6 से ज्यादा ले नहीं सकता। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आ रहे हैं फिर? 6। ग्रुप। हाँ जी सर। 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो और 6 ही ग्रुप बन रहे हैं। ओके। अगर आप P1 में बात कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप हो गया इसका, सो कॉल्ड 13th ग्रुप, बोरॉन से शुरू हो रहा है वो शुरू और हो रहा है। और अगर आप फिर P2 जा रहे हो, फिर तीसरा भी भर रहे हो, फिर चौथा, पांचवा, छठा, तो आप 6 ग्रुप बना लो इसके। ओके। जिसने अभी आपने जो नाम लिया था पहला, अभी ग्रुप 13 का, उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली। फैमिली। ग्रुप 14 बोरॉन को से बोलते हैं। लेकर हाँ जी। एस्टन एस्टाटाइन तक। जो भी है लास्ट वाला जो है, दैट इज योर टॉप टू बॉटम, राइट? यू मीन टॉप टू बॉटम? यस। आई डोंट हैव एनीथिंग ओपन नाउ बिकॉज आईज आर एकिंग। मैं अपनी एंटीबायोटिक डाल के, और मुझे बताओ, और, अभी कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है, आंखों पे हाथ मत लगाना, बी वेरी केयरफुल। ऑल राइट, व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रुप कॉल्ड एज? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। व्हाट इज द नेक्स्ट फैमिली कॉल्ड एज? द ऑक्सीजन फैमिली। ओके। व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द ऑक्सीजन फैमिली? नाम पता है उसका? वेरी फेमस। कैल्कुलेंस। यस, पता होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। कैल्कुलेंस नेक्स्ट। ही कहते हैं। हाँ, कहते हैं। नेक्स्ट इज हेलोजन। ये लो जो फ्लोरीन वाली। फ्लोरीन वगैरह, हाँ भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हमने आयोडीन, 10th में एक्सेट्रा। पढ़ा था, हाँ, कार्बन ये वाला। सब ही वही है, बस अब इसका वो एक नया फ्लेवर आ गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी में क्या है, तो बस वो उससे ग्रुप का नंबर बना लिया, दैट्स ऑल। द नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 15, राइट? द ग्रुप 15, इट इज नाइट्रोजन फैमिली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निक्टोजन फैमिली। निकोटीन। यस। तो बोरॉन और बोरोजेंस नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, बोरॉन इज बोरॉन। ओके। अब इनका एग्जैक्ट मीनिंग भी होता है। चैल्कोजन का जो होता है मीनिंग वो ये होता है कि दीज आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, बिकॉज इनमें से बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो ओर्स, जब आप मेटलर्जी पढ़ते हो, सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है, सो यस सर। दे फॉर्म द ओर्स एंड दे हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स, देयरफॉर द नेम अच्छा, रोस्टिंग वगैरह चैल्कोजन। करते हैं। हाँ, यस। तो चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलोजन का क्या मतलब होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। सर, वो सोडियम जो क्लोराइड,
हाइड्रोजन एटम को भी रिप्लेस कर देते हैं, यस, वो 10th वाला। यस। और मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट नोबल गैस। आई थिंक नोबल इज नोबल बिकॉज इट इज केमिकली नॉट रिएक्टिव एट ऑल और वेरी लेस रिएक्टिव। कई लोग बट इसको, सर जेनन और जेनन कंपाउंड्स बनाता है। वो लंबे चौड़े होते हैं अभी तो फार, बट द लेवल ऑफ रिएक्टिविटी इज वेरी लो हेयर और नेग्लिजिबल। ओके, विद रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑब्वियसली, ठीक है, वो आएगा सब। तो इनका क्या क्या नाम होता है लास्ट ग्रुप का? नोबल गैस ग्रुप, इनर्ट गैस ग्रुप, जीरो जीरो ग्रुप, कुछ भी हाँ, नाम रख लो। 3 नोबल गैसेज है। हाँ, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस ग्रुप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाँ, कितने? 6। जीरो। नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, जीरो। अच्छा, लगा कि आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं। हाँ, जीरो वैलेंस माने वैलेंसी वाले, तैयार तो नहीं ना है कुछ करने के, दे आर नॉट रेडी। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक? हाउ मेनी ये एलिमेंट्स। छह ग्रुप्स जो थे, काफी सारे। 35 हैं, 35। अच्छा। एंड दे कैन बी मेटल, दे कैन बी नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, कुछ भी हो सकता है। एंड दीज कैन बी इन अलग अलग स्टेट ऑल्सो एट द रूम टेम्परेचर। दे कैन बी सॉलिड्स, दे कैन बी लिक्विड्स एंड गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है इस ग्रुप की, तो कोई खास पैटर्न नहीं है कि सारे मेटल होंगे, अल्कलाइन मेटल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और अलग अलग स्टेट में भी हो सकते हैं बट फिजिकली। ओके, एनी आइडिया अबाउट डी ब्लॉक विच इज बिट? अच्छा, हाँ, नहीं, सॉरी, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल मेटलॉइड्स एड्रेसिंग क्या क्या होगी? होते हैं? हैं? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे शो बोथ द प्रॉपर्टीज। और द प्रॉपर्टीज मतलब मेटल और नॉन मेटल की दोनों। यस, यस, बीच में कुछ प्रॉपर्टीज उसकी जैसी, कुछ प्रॉपर्टी उसकी जैसी। ऑलराइट, अब मुझे बताओ पी ब्लॉक का जनरल एड्रेस क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाना है, लेकिन जनरल एड्रेसिंग पहचानते कैसे हैं पी ब्लॉक की? सर लिखा कैसे जाता है? एन हाँ, ठीक है, पी। पी 1 to 6। हाँ, लेकिन इसमें साथ में एक NS2 भी लिखना है आपको। अच्छा। तो जब आप इससे को बोलो द जनरल एड्रेसिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पी ब्लॉक एलिमेंट इज रिटन एज NS2 NP1 to 6, करेक्ट है। तो NS2 साथ में लिखना है हमें। ठीक है। ऑलराइट, डी ब्लॉक एलिमेंट पे जाते हैं। आपके हिसाब से डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, अगर आप उन टेबल में देखोगे तो उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएगा, किस ऑर्बिटल में जाएगा? डी। यस, कॉमन सेंस, राइट, मतलब अब बट पता चल गया। डी मतलब काफी कम है, दिख भी नहीं रहे मुझे। हाँ, अभी, ओके। अब सवाल मेरा ये है कि डी सबशेल जो है कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है ज्यादा से ज्यादा? सर 10। इसलिए 10 ग्रुप है। 10 ग्रुप है। कि गिन लो। ये मतलब मुझे तो दिख भी नहीं रहा ग्रुप है भी इसका कि नहीं। 3 to 12 क्या है? 3 to 12 वो डी में नहीं है। हम्म, थ्री टू एक ट्वेल्व मिनट। देखो, ग्रुप नंबर साफ साफ लिखा हुआ है, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सेंटर में बिल्कुल, एस और पी ठीक के है, ये बीच, एस और पी के बीच में। डी पहले आ रहा है, एस बाद में तो आ रहा है। बट एस में नहीं होने चाहिए सारे। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है, वी वी ओनली रेफर टू दैट। लास्ट इलेक्ट्रॉन सर तो। डी में जाएगा। अच्छा, डी में जाएगा, ठीक। हाँ, अब ग्रुप नजर आ गए? हाँ जी, हाँ जी। कितने ग्रुप हैं, काउंट करना। 3 से लेकर 11 तक है। तुम्हारे में 11 है, कौन सा देख रहे हो भाई? 12 होता है, जिंक वाला है लास्ट, सबसे ऊपर फोर्थ पीरियड में, 12th ग्रुप, नहीं, अच्छा 12 जिंक। तक है, 30, ठीक है, ठीक। 30। ओके। 10 हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। और डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? डी में से 10 जा सकते हैं। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए 10 ग्रुप है। ओके। इनका जनरल फॉर्मूला देख लो, दिख भी रहा है वैसे भी जनरल फॉर्मूला वैसे। तो एन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है NS⁻⁴ ओके। एस जो है वो 0 to 2 फ्लक्चुएट करता है डी ब्लॉक में, और
पेनल्टीमेट जो है n-1 वो फ्लक्चुएट करता है d 1:10, जिसमें एक्चुअली लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो n-1 है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट नहीं जाता ns2, उसमें 0 से 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। ओके। अब मेरा सवाल है, डी ब्लॉक एलिमेंट में व्हाट इज द रेंज ऑफ पीरियोडिक नंबर? सर 21 से शुरू हो रहा है। पीरियोडिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा मैं। अच्छा। रेंज होता है। बताओ, जैसे वाई की रेंज निकलती है मैथ्स में। नहीं 4 to 7, मतलब राइट? 4 to 7। 4 to 7 मतलब। आया आराम, थोड़ा सा तो आया आराम। ओके, 4 से दिख रहा है 4? नहीं 4 का मतलब क्या है इसमें? पीरियड। इसका जो ग्रुप नंबर थर्ड है पहला, वो किस पीरियड में है? SC 21 एटॉमिक नंबर। थर्ड ग्रुप में। फोर्थ में है। स्कैंडियम ना। हाँ, किस ग्रुप में है? सर यहाँ थर्ड थर्ड में। ग्रुप में है। पीरियड कौन थर्ड सा है? पीरियड 4। हाँ, और अच्छा 4 to 7 खत्म। ओके। हाँ, तो रेंज पता पीरियड चल गई ना। ठीक है। द रेंज ऑफ डी व्हेन इट कम्स टू पीरियड इज 4 to 7। ओके। तो डी ब्लॉक्स जो होते हैं, अगर मैं बोलूं कैन आई से दे हैव 10 ग्रुप्स एंड दे हैव 4 एज द पीरियोडिक रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 7। ठीक है। यस सर। सही है, दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, दैट्स ऑल और नथिंग मोर देन दैट। एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को पढ़ना कैसे है, दिमाग में ये बातें जब बार बार सुनोगे पढ़ोगे तो आपको ये मेमोरी में चला ही जाएगा, ये यू विल रिमेंबर। जस्ट दैट यू हैव टू डिस्कस विद समवन, इफ यू डिस्कस विद एनीवन यू विल बी एबल टू मेमोराइज। मतलब कहीं से भी बीच में से पूछ लिया, दैट इज अ वे यू हैव टू मेमोराइज दिस। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, एक सेकंड यार, थिंक सम। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक सेकंड क्षितिज है। यस सर। ओके, आई विल। वी आर ऑन द डी ब्लॉक, राइट? या। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे, और ये नाम भी दिख जाएगा आपको पीरियोडिक में। एस ब्लॉक के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्लॉक अपार्ट फ्रॉम एस ब्लॉक? नेम। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक। बिल्कुल ऊपर लिखा होता है, ग्रुप नंबर के ऊपर, बिल्कुल ऊपर टॉप पे अलग से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ। ओके, एनसीईआरटी में लिखा है। अगर आप जाओगे तो एस और पी दोनों में लिखा हुआ है। एस और पी दोनों रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। डी में ट्रांजिशन एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वर्ड। ट्रांजिशन हाँ जी सर वो ओके, कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है। हाँ कलर से करा, ठीक बात है। दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। राइट, ऑलराइट। अगर हम बात करें मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो लुक एट द, रीड सम ऑफ देम। कुछ एलिमेंट्स पढ़ते हैं इसके, देख व्हाट डू यू सी? मैंगनीज, आयरन, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, हेफनियम। रदरफोर्डियम। बहुत जबरदस्त मेटेलिक बिहेवियर है, जबरदस्त। मेटल से सारे। हाँ, अच्छा। काफी काफी तगड़ा मेटेलिक रेंज है। अब जिंक जिसमें डल गया फिर बचा ही क्या? आयरन आ गया जिसमें, क्रोमियम आ गया, मतलब फिर व्हाट इज लेफ्ट, राइट? सारे मेटल तो यहाँ पहुंचे पड़े हैं जो इरिडियम, डेली, हाँ ऑस्मियम, जो, है ना, जो, टंगस्टन। यस, ये सब मेटल पहुंचे ही तो पड़े हैं मतलब, अगर ध्यान से देखे तो।
So metals are already there, and if metals are already there, यहाँ पर ऐसे लुटेटियम और ये लॉरेंसियम ये सब क्यों लिखा हुआ है इधर? 71 और एक मिनट, लेट मी 70 इतना, थोड़ा अजीब है। 71 ग्रुप नंबर 3 में। ग्रुप नंबर 3 में। ओके, एक्टीनियम है, लेंथियम है। ग्रुप नंबर 3 में एससी से स्टार्ट हो रहा है, YLAAC। ग्रुप व्हाट आर यू रेफरिंग टू ग्रुप नंबर 3? नंबर 3 में सर लुटेटियम और लॉरेंसियम लिखा हुआ है। विच बुक आर यू रेफरिंग टू? सर नहीं सर, मैंने पीरियोडिक टेबल खोल रखा है नेट पे। नहीं नहीं, डोंट सी दैट। A lot of periodic tables on the internet are wrong. Please see NCRT only. 99% of the periodic tables in the books and net are wrong. तो एनसीईआरटी में भी रॉन्ग हो सकता है। नहीं, उन्होंने अपडेटेड रखा हुआ है, मैंने कंपेयर करके देख लिया है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी में है, अपडेटेड है काफ़ी। यू आर सीइंग सम ओल्ड वन। दिस इज अ प्रॉब्लम आई फेस्ड विद अनदर स्टूडेंट। उसके समय सर मेरा, एनसीईआरटी में ना एक और प्रॉब्लम है। हाँ, और टेढ़ा दिया हुआ है, उन्होंने, सीधा है ही नहीं। हाँ यू कैंट रीड इट, तो आपको यू टू copy it and then rotate it somewhere. Maybe copy it in the telegram and then rotate it. नहीं सर, वो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट के ना सिंबल्स दे रखे हैं, नाम नहीं दे रखे हैं। हाँ, वो भी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में। एक बहुत कलर्ड वाला दिया हुआ, अच्छा देखने में अच्छा लगता है, बड़ा बट यस, किसी ने भी पूरा नाम नहीं दिया हुआ। तो तुम, यू आर लुकिंग एट ओल्ड वन, यू आर लुकिंग एट वेरी ओल्ड वन। एक मिनट सर। So be careful when you pick up a periodic table. If you pick up a wrong old periodic table, you will get lost. Please don't pick up a old periodic table. Pick up the latest one. लेटेस्ट वाला भी मिल गया, इसमें नाम भी लिखे हुए हैं। Okay. कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट नीड टू नो द नेम्स, अनइम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा फोकस है। पर हाँ, How many? Okay, one more important point is, if you see, if you look at the metals in the S block, right, and compare them with the D block metals, S block metal की बात कर रहा हूँ, D block metal की बात कर रहा हूँ। तो जो S block वाले मेटल है ना, वो सारे के सारे जो होते हैं, दे आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो होते हैं डी ब्लॉक वाले, इनकी ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते। लोहा विल नॉट मेल्ट वेरी इजीली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो इसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग भी होती है डी ब्लॉक के मेटल्स में, वो स्ट्रॉन्गर होती है, और वहाँ बड़ी वीक होती है वो सोडियम और उसमें एस ब्लॉक के मेटल्स के अंदर। एंड एज फार एज रिएक्टिविटी गोज, ऑब्वियसली एस ब्लॉक के मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, and they're not even available easily. They're available in the form of reacted compounds in, earth metal and all that. But ये वाले जो होते हैं, they are available, ना ये less reactive होते हैं। और जो S block वाले होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन, they're ready to lose the electron immediately. बट ये वाले मेटल जो है, इतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि किसी के साथ भी इमीडिएटली रिएक्ट कर लेंगे। दे आर डिफिकल्ट टू रिएक्ट, यस दे आर मेटेलिक डेफिनेटली, बट when it comes to reducing others, which means giving electrons to other to form a bond, they are less of a reducing agent. They are less reactive. They are, but they are very malleable and ductile. Well, sodium and all of those are not that ductile and malleable. But iron ये वगैरह ductile और malleable होते हैं जो पढ़ते हैं। और दूसरा, वो वाले S block के element physically they are very weak, they are not very heavy, whereas and they have low melting points. But these D block elements are very heavy,
They are they create very strong metallic bond inside the metal itself in the crystal, and also they are known for one thing, that they create a lot of colored compounds. A copper sulfate और जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये सब कलर्ड कंपाउंड देने में भी बड़ी मास्टरी है इनकी. ओके, देयर इज वन एक्सेप्शन इन दिस इफ बट यू नो. जिंक नहीं देता इतने। जिंक का भी कलर क्या आता है? ग्रीन आता है, सर ना ना, उसका कलरलेस ही होता है। कलरलेस होता है. ओके, डी ब्लॉक मेटल जो है दे आर, उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, मरकरी. लिक्विड होता है वो, मेटल नहीं, मतलब सॉलिड नहीं होता. हाँ। राइट, इसकी कॉमन एड्रेसिंग पढ़ लो क्या है डी ब्लॉक की टॉप पे. अच्छा, मैंने बता दी थी, हम्म। है ना. इसमें जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, शेल है, उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, ना कि लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट शेल में. लास्ट शेल इसका इसका ही होता है, और पेनल्टीमेट जो होता है वो डी होता है. ऑलराइट, इसमें लगभग 40 एलिमेंट है डी ब्लॉक के अंदर. देर आर 40. राइट, पीरियड की रेंज भी आपको पता चल गई, आपको ये भी मालूम चल गया कि ये डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 10 ग्रुप्स हैं. एफ ब्लॉक के अंदर जाते हैं. अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं तो आपके हिसाब से एफ ब्लॉक में एफ की कॉन्फ़िगरेशन जो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन इट अकोमोडेट? एफ, 14। इसलिए 14 ही है इसके अंदर. ओके, बट एस के सर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, बट है मतलब 7 ग्रुप्स आई गेस। कौन? एस के। एस के? एस के तो यार आप देखो ना, वो आप टोटल नंबर ऑफ वो देखो आप, उसमें 1 या 2 आ सकता है. हाँ जी, तो दो बट ही तो ग्रुप है, ग्रुप दो ही इसकी हैं, बात दो ही हैं. एस ब्लॉक नहीं। में दो ही तो हैं, अल्कली और अल्कलाइन. और कौन सा ग्रुप बताया मैंने एस का? पहले दो ही थे, या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर. अच्छा, ओके ओके। ठीक है, अब एफ ब्लॉक के अंदर आप देखो, और तो जो हमने नीचे अलग से दे रखे हैं, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था ना नीचे वो दे रखे हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. एफ ब्लॉक में नीचे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं, जो अंदर नहीं लिखे हुए हैं, अलग से दे रखे हैं नीचे. काउंट द नंबर, इसके अंदर नंबर काउंट कर लो, लैंथियम से लेके लुटियम तक. लैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लैंथेनॉइड्स. यस। और 4F सीरीज को देख लो, एक 4F सीरीज है, एक 5F सीरीज है नीचे. 5F की जो सीरीज है दैट इज एक्टिनॉइड्स. ये सारे रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम वगैरह, या यूरेनियम है, थोरियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम। क्यूरियम. यस, गुड ऑब्जर्वेशन. ओके, इनको, प्लूटोनियम तो सर नेचुरली मिलता है ना। हाँ, प्लूटोनियम यस, बनाना पड़ता है वो तो। हाँ, इसमें से 90 कुछ नेचुरल हैं और बाकी थोरियम सारे. और यूरेनियम मिल जाते हैं यस. नेचुरली। ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? लुक एट द जनरल फॉर्मूला. इसमें तो पेनल्टीमेट दो हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन एफ, बट वो सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट सॉरी. n-2 f raised to power 0 to 10, n-1 d 0 to 1 और ns2. तो इसमें d भी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में. लास्ट इलेक्ट्रॉन f में ही जाएगा, लेकिन पूरी एड्रेसिंग काफी लंबी है, खत्म ns2 पे हो रही है f ब्लॉक की. तो इसकी जो जनरल एड्रेसिंग है इट इज n-2 f 0-14, n-1 d 0 to 1 ns2. अच्छा, ns2 इज फिक्स्ड, यू डोंट हैव 0 to 2, ns2 ही रहेगा. और n की वैल्यू क्या होगी इसकी, इन दोनों की जो लेनी है आपको, इन दोनों ब्लॉक्स की? 6 and 7. ओके। अलग से लिखे हुए हैं.
और लेट्स सर अब अच्छा तो लगता सिक्स्थ था। सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फेयर इनफ। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अच्छा एफ ब्लॉक बोल दिया इसको, हो गया, ठीक है। हाउ मेनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए टोटल? 14 हो गए। सारे हम्म, मेटल्स हैं बाय द वे। सारे मेटल्स। ऑल 28 आर मेटल्स। ओके ओके। ओके। Anything that is interesting? I don't see. Give me an example of rare earth metals which are part of this F block. ये जो रेयर स्कैंडियम, अर्थ मेटल। स्कैंडियम एंड येट्रियम, ओके। very very rare to find in nature. रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम भी रेयर में आता है। रेयर ही नहीं लगता है। रेयर में तो स्कैंडियम और येट्रियम है। अच्छा। रदरफोर्डियम भी रेयर में आ रहा है, देखना पड़ेगा, पता नहीं। ओके, यस, the actinoids are radioactive. Yes, they release energy upon radioactive decay. अनस्टेबल न्यूक्लियस। Yeah. Mm, yes, and plutonium is synthetically produced. यस। बना सकते हो, ठीक है, तभी तो क्या बोलते हैं। प्लांट्स बनते हैं Yeah. मैन्युफैक्चर होता है सब, पर हाई बहुत रेडियो एक्टिव होता है वो, मतलब यूरेनियम और थोरियम से। Okay. All right. So hopefully it gave you some glimpse of periodic table, right? कि यस। किस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड है। अब देखो जेई मेंस की अगर हम तैयारी करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी। तो अभी तो जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू स्कूल। स्कूल मतलब एनसीईआरटी बेसिकली, राइट? मेटलॉइड्स, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू मेटलॉइड्स? सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स। Yes, semi metals because they show the properties of metal and non-metal both. Which block has maximum non-metals? which block has maximum non-metals? Sir, I guess it should be a P block. Yes, correct. Very nice. Very good answer. Very good answer. सोचा और बताया, बहुत बढ़िया। Okay. Can we say that most of the periodic table, in fact, around 80% of the periodic table is metals? Yes. Yes, we can. Absolutely, we can. Tell me two examples of metals which are present in P block. तो P block में भी है मेटल थोड़ा सा, लेकिन वो कौन सर कौन से हैं आप? गालियम। यस, एल्यूमिनियम सबसे आसान, टिन, गैलियम भी एक है ही, बिस्मथ, एल्यूमिनियम भी है। स्टेनम भी है। तो स्टैंड का आइडिया नहीं था। ऐसे हाँ, मतलब है थोड़ा बहुत मेटल ही, करेक्ट है। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल मेटल ही मेटल है चारों तरफ। व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेटल्स ऑफ अ पी ब्लॉक? स्पेशल नेम? पुअर मेटल्स। पुअर मेटल्स। हाँ, गरीब, गरीब मेटल। ये भी नाम रखे हैं, पागल है। एनीवे, आई थिंक दिस कुछ भी। इज, हाँ ठीक है, साइंस है, चलता है। सम ये मतलब रिसर्च। पुअर मेटल से मतलब क्या पुअर होता है? मेटल, रेयर अर्थ मेटल वगैरह कुछ भी, ठीक है। ओके, which are the two most ductile metals on earth in गोल्ड this? एंड And सिल्वर। platinum, and platinum. Ductile. Gold is most malleable.
ओके 1 मीटर की वायर निकल जाती है थोड़े सी। यस टेल मी which metal in the purest state will be the best conductor of electricity but will become very expensive if we use it सर इट्स सिल्वर। क्या है सिल्वर। yes how do you know this यार सर 10th में नॉन मेटल से ओके नॉर्मल्स वाला एक चैप्टर था। अरे भाई क्या मैं क्या पढ़ाई करी है 10th में भाई हैट्स ऑफ ब्रिलियंट okay which metal is the strongest reducing agent in water आई गेस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट in water इन as a वाटर metal फ्रांसियम। lithium लिथियम है। yes फ्रांसियम क्यों नहीं है, वो तो रिएक्टिव है। जबरदस्त है okay can we say that non-metals और पोर मेटल्स। no non-metals are no वो तो p block वाले हो गए ना यार the p block metals are called नहीं नहीं मैं that's not the question the if you see the non-metals which is typically your p block do you think they will accept electrons or they will take away electrons they will receive electrons or will they give away ई electrons ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ सर दे वुड टेक इलेक्ट्रॉन्स। yes correct इलेक्ट्रोनेगेटिव yes सॉर्ट ऑफ। yes okay पता है ये भी सर ये 10th में ही था ये सब चीजें ऐसा मतलब। you know ठीक है एड्रेसिंग थी थोड़ी सी मेन okay let's talk about what do you mean by which elements are called as the noble metals नोबल मेटल्स। हाँ गैस सुनी है। metals मेटल्स नहीं पता। these are metal जो chemical रिएक्शन होने पे कुछ हाई टेम्परेचर पे भी दे विल नॉट गेट इम्पैक्टेड तो गोल्ड है सिल्वर है पेलोडियम है ऑस्मियम है ये सब जो होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स इतनी जो दे इफ यू इवन इफ यू कीप इन एन एनवायरमेंट ऑफ रिएक्शन they may accelerate or decelerate another reaction but they will not take part नहीं लेंगे ये ओके। okay I think ये this और कुछ मैन मेड मेटल्स हैं जो इंसान ने खुद बना लिए हैं हमने राइट सो दीज आर क्रिएटेड इन द लेबोरेटरीज और न्यूक्लियर रिएक्शन it's human power okay okay which what do you mean by the main group in a periodic table which what are the members of a main group मेन ग्रुप क्या होता है? हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो आ रहे हैं आपके हाइड्रोजन छोड़ के जो ग्रुप 1 और 2 में है और ग्रुप 13 to 18 है these are called as main group elements it's a grouping because they're the lightest in the whole periodic table टॉप पे हीलियम से स्टार्ट करो फ्लोरीन तक चले जाओ इनको बोलते हैं मेन ग्रुप ओके टेल मी डू यू नो समथिंग लाइक अ डायगोनल रिलेशनशिप नहीं। okay if you and just for your information what you need to do is you have to memorize the first 20 by heart ओके। the first 20 have to be remembered first 20 के अंदर एक टिपिकल चीज पाई जाती है जो आगे भी पढ़ेंगे हम वो ये है कि द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड okay so I'm referring to the first 20 because they are only in second and third period first 20 elements okay उसके अंदर एक रिलेशनशिप पाया जाता है कि प्रॉपर्टी तो ऐसा लगता है कि उस ग्रुप में ही होगी मतलब मैंने ऐसे
लेकिन उसके जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है उसके साथ प्रॉपर्टी मैच करती है, मतलब अगले के अंदर, ग्रुप के अंदर. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल व्हिच इज द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड in terms of pairing. Now look at aluminium and boron. Sorry, beryllium and aluminium. Go to the periodic table. Go back to the periodic table. I will give you the examples. एल्यूमिनियम और कौन सा? Beryllium. एल्यूमिनियम के डायगोनल में होता है. पहले तो एल्यूमिनियम लो आप उसमें Al. ठीक है, और बेरिलियम? बेरिलियम कहाँ पे? लेट अस सी दैट. सर एटॉमिक नंबर 4। नहीं, वो दूर हो गया बहुत. एटॉमिक नंबर 4, 1 2 3 4. बेरिलियम और एल्यूमिनियम को अगर आप देखोगे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम को अगर हम देखते हैं, सो बीच में अगर गैप खत्म कर दो तो डायगोनली आ जाएंगे ये. ओके। और नाउ सी टू मोर, लिथियम एंड मैग्नीशियम. वैसे हम डायगोनल, ये तो लिथियम के साथ डायरेक्टर है. सोडियम भी तो ले सकते थे, वो डायगोनल नहीं था? नहीं नहीं, इट डजंट शो एनी डायगोनल. फर्स्ट 20 में नजर आता है सिर्फ. अच्छा। और नहीं, और ये कुछ खास है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम तो डायगोनल दिख रहे हैं ना साफ साफ. उसी ठीक तरह है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी डायगोनल ही है, बट हाँ बीच में डी ब्लॉक आ रहा है. और अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो आई कैन टेक द बोरोन और एग्जांपल ऑफ. सिलिकॉन। बोरोन और सिलिकॉन, यस, बोरॉन एंड सिलिकॉन. दे ये तो काफी एग्जिबिट सारे हैं। सिमिलर, हाँ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी. हाइड्रोजन के साथ बेरिलियम, हाँ. और ऐसे होते हैं। नाइट्रोजन के साथ सल्फर, ऑक्सीजन के यप. साथ क्लोरीन, यस. क्लोरीन के साथ आर्गॉन। But you have to be very sure कि they do exhibit this diagonal relationship. Not every diagonal is included as part of this grouping relationship. Our diagonal ओके। relationship may not be resulting in same properties. May not. Okay, let's talk about. Okay, okay. A lot of reasoning for diagonal relationship is actually physics, electrostatics, chapter 1 of class 12th. Most of this chapter is based on chapter 1 of class 12th physics, electrostatics. सारा, क्योंकि electron is the focus. Only thing is it is at, being studied under chemistry, under chemical. Otherwise, if you see the जैसे screening effect पढ़ा था हमने, वो that is nothing but Coulomb's law, first law. Force between the nucleus and the बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर जो आउटर होते हैं, तो ज्यादातर चार्ज से बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ता है ये सारी स्टडी के अंदर. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो थोड़ा सा, change in the way you study them, but reasoning finally is completely physics driven in this chapter. When we actually start doing that enthalpy and radius and all that, you will see yourself. Most of it is physics and Coulomb's law and understanding of the potential energy. So इट्स if you यूज्ड have इन अंडरस्टैंडिंग केमिकल बिहेवियर। yes, so if you have good understanding of the physics part of it, then it's very easy to explain the chemical behavior. Very, very easy. Why this electron is, this element is behaving the way it is. Okay. Okay. Can we say that the principal quantum number of the valence shell represents the group number?
um, The principal quantum number of the valence shell एक बार चेक करते हैं. represents the group number. Wrong. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो पीरियड डिसाइड करता है. नहीं, आई डोंट. नहीं, ठीक है. ओके. It decides the period, right? There are 7 periods, and you're going to 7, right? Tell me the group number and period number of an element having atomic number 46. Atomic number 46. It is palladium. No, you don't not D. allowed to see that. Without referring to anything, you have to tell me. It should be. Tell me a logic. Don't tell me answer from the periodic table. What logic will you require if I tell you the element is so ये and D so? ऑर्बिटल में D ब्लॉक है, How do you know it is D block? क्योंकि है एटॉमिक नंबर 46 है. Hold on, hold on. I told you one thing. As you progress down, हाँ जी. what happens? It's 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ऐसे ही पढ़ा था हमने. तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि Z is 46, Okay. right? Then from the standpoint of inert gases, which inert gas are you referring to? Krypton. Okay, you're referring to krypton, right? Krypton किस पीरियड में है? 18th. पीरियड अच्छा, पीरियड 4. उसमें तो आर्गन होती है. नहीं, 4 है सर. आर्गन 3 में होती है. हाँ, नेक्स्ट वन, मतलब हाँ लास्ट वाला. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पीरियड की स्टार्ट है, अगर आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह सब पता है, यू ऑलरेडी नो हीलियम, नियॉन, आर्गन, केटी, जिनॉन, रेडॉन, राइट, ये सब पता है आपको. मैं अगर आपको दे दूं कि जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर 10 नियॉन. तो वो कौन सा एलिमेंट है? नियॉन है. तो कैन आई से कि 10 के बाद वाले जो होंगे वो थर्ड पीरियड में चले जाएंगे? यस. क्या मैं बोल सकता हूँ जो एटॉमिक नंबर 18 के बाद होंगे वो फोर्थ पीरियड में चले जाएंगे? यस. क्या मैं कह सकता हूँ जो एटॉमिक नंबर 36 के बाद होंगे वो फिफ्थ में चले जाएंगे? यस सर. क्या मैं कह सकता हूँ जो 54 के बाद होंगे वो सिक्स्थ में चले जाएंगे? यस सर. अब मेरा सवाल है कि मेरा 46 जो है किस पीरियड में है? 46 किस सर. लॉजिक से? सर 36 के बाद है तो वो सर फिफ्थ में. पीरियड 5th पीरियड में आएगा. ये तो पक्का हो गया. और मैंने आपसे पूछा भी यही था, पीरियड नंबर क्या है. ओके. तो आपने दिमाग लगाया कि पीरियड नंबर एज डिसाइडेड फ्रॉम द इनर्ट गैसेस कैसे चलता है. ठीक है. तो आपने पता लगा लीजिए. अब मेरा क्वेश्चन है इसी इसी तरह के लॉजिक से, प्लीज टेल मी व्हाट ग्रुप नंबर इट बिलोंग्स टू. अगेन यूज इनर्ट गैस लॉजिक एंड डिसाइड कि विच इज द नियरेस्ट इनर्ट गैस विद जो इसके ऊपर और नीचे है 46 के. यू सेड क्रिप्टॉन, राइट? क्रिप्टॉन से फिफ्थ शुरू होता है. Z ग्रेटर देन 36 पे 36 है ना, देखो क्रिप्टॉन. हाँ जी. तो ये फिफ्थ पीरियड में, ये तो पक्का हो गया. नाउ टेल मी विच अगला पीरियड हो जाएगा इसका, सिक्स्थ हो जाएगा. तो दो नियरेस्ट जो इसकी जो गैसेस हैं जिसके मतलब जहाँ ये वो हैं क्रिप्टॉन और जेनॉन. ओके. अग्रीड? यस सर. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. क्रिप्टन और जेनॉन हाँ, को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या मिलेगा मुझे? 10. क्रिप्टन और जेनॉन को सब्ट्रैक्ट करो नहीं तो नहीं, 10 मेरे मिलेगा. नंबर को, मेरे नंबर को. उससे पहले वाली जो क्रिप्टॉन निकाली थी जहाँ से फिफ्थ पीरियड की स्टार्ट हुई थी, उसका 36 सब्ट्रैक्ट कर लो गिवन एटॉमिक नंबर से.
कितना आ जाएगा? 46 माइनस 36। अच्छा, 10। हाँ, अच्छा, तो सिर्फ ग्रुप नंबर आ जाएगा। आया एक ग्रुप नंबर आया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब वो भी करो। जो इसके बाद वाली वो थी, गैस, नेक्स्ट। जेनॉन। हाँ, उसमें से भी सब्ट्रैक्ट करो इसको, 54 माइनस 46 करो। ये 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। अब 54 - 46 ना, 8 तो था। 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आपने इसका ये सब्ट्रैक्शन कराई आया 8, तो इसका जो ग्रुप नंबर आएगा दैट विल बी, ओके, तो ये इसको कर दो। ऊपर ग्रुप नंबर आया था 10, अब आया है 8। जो ऊपर सब्ट्रैक्शन करी थी, तो इनकी पोजीशंस आ गई, फिफ्थ पीरियड और 10th ग्रुप आया। और अगली बार आई 8 आया अगली बार, राइट। तो इसका फिर ग्रुप नंबर क्या हुआ अगर इसका 8 आया सब्ट्रैक्शन से? नहीं सर, तो आपने 36 माइनस 46 ही होएगा 46, ना। 10, हाँ आ गया, 10 आ गया 10, ना। ग्रुप नंबर 10। हाँ, ठीक है। दूसरे में क्या आया? 8। 8। 8 आया, लेकिन जस्ट टेल मी, जो 8 होता है जेनॉन और इस एटॉमिक नंबर में, उसमें वो होते कितने हैं टोटल? जो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2, 8, 18 वाले जो होते हैं, ये कौन से पीरियड में है? 2, 8, 8, 18, 18। सर जेनन टू 5th पीरियड में है। 2, 8, 18 है ना, कुछ ऐसे ही है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। पीरियड तो फिफ्थ आ गया ना हमारा। तो 10 आ गया ना आंसर, इस 10, 10 आ गया। ऊपर से निकल गया था वैसे तो, हाँ जी। सब्ट्रैक्शन से। एक और मेथड होता है कि अगली जो वो होती है, क्या कहते हैं यार, इनर्ट गैस, उसमें से भी अगर एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, जो नंबर आता है उसको लिंक कर देते हैं वो 2, 8, 8, 18, 18 से। तो 18 माइनस 8, जो आपने 8 आंसर निकाला था जेनॉन और उसका, तो 18 माइनस 8, ठीक तो है। वो भी 10 आ गया आंसर आपका, सेम ही आ जाता है। क्या इंटरेस्टिंग है काफी ये। ये तो इंट्रोडक्टरी है बेसिकली, कि द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्या मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, डोंट फॉरगेट टू लुक एट देम। पेपर वही होगा आपका, दैट्स योर सर पेपर। बाकी चीजें लाइक प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ, आज हम मिल रहे हैं रात को डिस्कशन के लिए। सर 9:30 बजे सर नहीं हो पाएगा, वो क्यों, लेट है बहुत। कहाँ जा रहे हो तुम? सर किस 9:30 सर, कल स्कूल है ना। हाँ, तो आधे घंटे के लिए पढ़ लेंगे। ठीक 30 मिनट्स में क्या बिगड़ जाएगा? है। ओके। टू लिटिल राइट, 30 मिनट्स। सर एक 9 बजे रख लो अगर हो यार सके। क्लास होगी, और मुझे अभी, मेरे को अभी पहले, अभी मेरी 1.5 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास है, फिर 1 घंटे की मैथ्स की क्लास है, और क्या टाइम हो रहा है? 7। हाँ जी। फिर 9:30 बजे तक तो मैं वैसे ही बुक दूँ। बट मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ये डोंट वरी, डिस्कशन से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, एक इंफॉर्मेशन को दिमाग में ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये सीखना होता है इसके अंदर। ओके, टेल मी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? ये नहीं पता। अरे जो प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड और ग्रुप, डाउन द ग्रुप,
एक अच्छा। ट्रेंड में चेंजेस दिखाती हैं. The ओके। properties that exhibit a regular trend in the changes across the period and down the group of the periodic table are called as periodic properties. ठीक है। There has to be a regular trend in the changes. What ओके। type of periodic properties do you study in this chapter? कौन कौन सी ओके सर। प्रॉपर्टी पढ़ते हैं across the group, down the group? One you told me electronegativity. ओके। और कौन सी पढ़ी है, सुनी है मैंने स्कूल? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सुनी है। गुड फॉर नथिंग है, नहीं ठीक है चलो मान लेते हैं फिलहाल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा ही कुछ होगा. चलो, और एक। कुछ फिजिकल होंगी कुछ केमिकल होंगी, राइट? सबसे ज्यादा जो आप इसमें पढ़ते हो, द प्रॉपर्टीज दैट यू स्टडी आर न्यूक्लियर चार्ज, विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर द स्क्रीनिंग इम्पैक्ट इज टेकन केयर ऑफ. स्क्रीनिंग पढ़ी थी ना हमने, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, हाँ वो जी। जो न्यूक्लियस के साथ कनेक्शन है वीक कर देते हैं बाहर वालों का. यस सर, यस। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लगता है कि अंदर का न्यूक्लियस इतना पॉजिटिव है ही नहीं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, व्हेन यू स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू नीड टू स्टडी इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने के लिए यू नीड द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12. नॉट एवरीथिंग, वेरी लिटिल. और क्या पढ़ते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी, आयनिक एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस. रेडियस। नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बड़ा हो गया. अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लें और आयन बना दें तो आयन का रेडियस कैसे बिहेव करता है. तीसरी चीज क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी. एंथैल्पी। नो 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 नो, आयनाइजेशन एनर्जी. हाँ ठीक है, यू कैन कॉल इट एंथैल्पी ऑल्सो, फर्स्ट एंथैल्पी, सेकंड. चौथी क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हाउ हाउ नाइसली यू वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. The more acceptability you have towards the electron, like a fluorine or chlorine and all these halogens, the more good you are to when it comes to electron affinity. More energy is released when you accept an electron and you become more stable. Loss of energy means you are having an exothermic reaction. इलेक्ट्रॉन मिला फ्लोरीन को, फ्लोराइड बना, बड़ी स्टेबल हो गई, और जब ये हुआ इलेक्ट्रॉन लेने का काम, उस समय एनर्जी रिलीज हुई. सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So therefore the energy is lost by the system, and therefore the electron affinity, enthalpy or whatever you call it, is highly negative. Better it is. बहुत एनर्जी लूज कर गया और बहुत स्टेबल हो गया, बहुत अच्छी बात है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी नेगेटिव, वेरी पॉजिटिव. एनर्जी लॉस्ट इज वेरी नेगेटिव. इफ यू हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यू वांट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली. आ जाओ. But your enthalpy which is associated with that is negative because you're going to lose. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार है, तो इट इज वेरी पॉजिटिव, तो प्यार तो बड़ा है, तो आ जाओ फिर. बट वो आने का मतलब है कि यू हैव टू बिकम स्टेबल नाउ. स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि नाउ यू आर गोइंग टू लूज एनर्जी. सो व्हेन यू हैव वेरी नाइस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, you are associated enthalpy, which is the energy released during that process, is highly negative. You will lose a lot of energy, so the reaction is exothermic. But now assume a situation when you want to accept the second electron. अब आपने एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आप फ्लोरीन से फ्लोराइड बन गए हो. अब आपके पास नेगेटिव चार्ज है और वो फ्लोराइड को आप एक और फिर से देना चाहते हो इलेक्ट्रॉन, वो रिपेल करेगा उसको. अब आप बोलोगे कि द सेम न्यूट्रल एटम विच वॉज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज नाउ गॉट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव, उसे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन. अगर आप जोर जबरदस्ती करके उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हो, नाउ योर एंथैल्पी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बिकॉज नाउ द सिस्टम विल डिमांड एनर्जी फ्रॉम यू if you have to force it to accept the electron. When it leaves by choice, because it has very
good electron affinity, the reaction was exothermic, loss of energy. Now it has become negative, and now you want to give it another electron, which means you are trying to make it more negative, repulsion. Now it will say, I don't want the. So suddenly the neutral atom, which was having positive electron affinity, has suddenly become negative towards electrons. And now instead of releasing energy, it will take energy to become stable. Earlier it lost energy, took the electron very nicely and became stable. No longer. So the fourth property that you study is the property of electron affinity. The fifth is what you just told me before, electronegativity, which is the sixth one. Chata, the acidic and basic strength of oxide, chemical property. What is the last one? The acidic strength and the property of hydrides. How ठीक many है. properties in all? 7. इनमें से ज्यादातर physical है. Nuclear charge is a physical property. Size is a physical property. Ionization energy is a physical property. Electron affinity, लेन देन इलेक्ट्रॉन का. Ionization energy का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूवल. कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा. एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत आसान है. मेटल तो तैयार बैठे हुए हैं, ले लो इलेक्ट्रॉन. Very little ionization energy is required. But when you move across a period towards the right, when you move towards the inert gases, the ionization energy will become very high. Nobody wants to lose electron towards the inert gases. फ्लोरीन क्यों लूज करेगा? 2 7 पे बैठा हुआ है, वो तो 2 8 बनाना चाहता है. 7 लूज करना बेटर रहेगा या 1 गेन करना बेटर रहेगा? 1 गेन करना. So ionization energy of fluorine or chlorine is very high. You can't remove 7 electrons. But their electron affinity is very nice. So if you look at a periodic table and you say P block, oh, they have very nice electron affinity. You look at the S block, oh, they're very nice. They have got good ionization, in a low ionization energy. But they don't have good electron affinity. In this periodic properties, the way you study this is very different. The way you will study in most of them is a fight. There are 3 fights happen that in a periodic properties situation. One fight is going to be between the property number 1 of effective nuclear charge, thus fighting with the electron affinity or ionization energy. कहने का मतलब है आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हो, वो बाउंड होते हो आप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. हाउ मच बाउंडेशन you have with the nucleus. If you are away from the nucleus as an electron, you have a lot of screening available. Then your screening is there because of the repulsion coming from the intermediate electrons, but the attraction is coming from the nucleus. But you also have something called as the other concept, where the electron wants to be received or taken away. So take the example of electron affinity, which we were discussing. You want to receive the electron very easily. You're very nice. You receive the electron. But when you receive the electron, you become negative. राइट तो उसके अंदर जब आप ये सारे स्टडी करोगे प्रॉपर्टीज में, उसको आप कॉमन जो 3 चीजें आपको पढ़नी है, विच विल ऑल्सो डिसाइड द फाइनल एक्सेप्शंस विच यू सी इन दिस, कि सर ये तो लीनियरली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे कैसे होगी अगले पीरियड में. अक्रॉस अ पीरियड इट वाज गोइंग अप, and when we move to the next period, there is an exception, it has come down. Why? So those exceptions actually are decided by 3 things or 4 things, and they are nothing but these properties. Majority of the times you will see a fight between the effective nuclear charge, which is the screening. You will see a fight between what and what? Fight between the nuclear charge and ionization energy. Nuclear charge is attractive in nature. Electron affinity is also attractive in nature towards an electron. Ionization energy is all about removal.
But then there are two things at play, that across a period, does the screening increase or decrease? And across a period, ionization energy decreases so a battle takes place between the screening and another property, and then we say the battle has been won by screening, and therefore it's getting very difficult to lose the electron, because although you are moving away from the nucleus, and it may give you an impression that now you're weak, yet your ionization energy is coming out to be high because the screening is weak. You're moving away, but sometimes the reverse will happen. You're moving away, but the proton becomes so large in number that the screening still remains very powerful, although your shell is very away from the nucleus. So the screening wins the battle, which happens as you move rightwards. The proton size, the nucleus size becomes so dense that even though you're an electron which is far away, and you may feel that it is very easy to take away the electron, it will not be, because now the dominating effect will be of the effective nuclear charge. But there are exceptions. मैं सब में जाऊंगा डिटेल में. I'm just giving you overview how to study this. When you study in a way that properties are fighting with each other. And when the property fight, the logic fails. यार आपने तो बोला था कि राइट साइड पे जाते जाते पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ जाता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो दूर है, तो लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि इफेक्टिव चार्ज बहुत ज्यादा है. लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ. The third factor that comes into play is the fact that where was the electron? Whether the electron which is being considered for the fight is an s orbital or a p orbital. Generally, if within a shell the electron is in p, it is easy to remove. The effect of effective nuclear charge is low. But if the electron in the same shell is in s, it is difficult to remove. Although all are 2s2, 2p, 3, but the one in p is easy to remove. So therefore, in some cases, you will see an exception. Although the shell number is same, and the logic says that they should behave in this manner as per the member of the tribe, it will not behave that way, because बाकी member of the tribe जो है उनके इलेक्ट्रॉन s में होंगे, और इस वाले मेंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो p में होगा. तो it will not adhere to your standard rules where the screening effect wins over the the shell number, क्योंकि third dimension of fight has been introduced. कि चलो ठीक है, exception क्यों आ रही है? Then we give you explanation of exception based on where the orbital is. कुछ समझ में आ रहा है? How to study? I'm not getting into details, but I'm telling you how to study. 7 प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसमें कई प्रॉपर्टी सारी जो है ज्यादातर उसमें there is a fight going on between the two properties, and then there is a logic built for that fight कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो निकलेगा नहीं. एक दो जगह पे वो फाइट जो है फेल हो जाएगी. उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा. ग्राफ को देखेंगे. आज तो मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं. वो देखेंगे ग्राफ, और 10-10 मिनट के अंदर वी विल बी एबल टू कवर ऑल द प्रॉपर्टीज. चैप्टर खत्म. दिस इज द वे वी विल स्टडी दिस चैप्टर. जस्ट आई गिव यू अ बर्ड्स व्यू कि बड़ा बड़ा कैसे आपको इस चैप्टर को देखना है. हाउ डू यू सी दिस चैप्टर? शील्डिंग इफेक्ट याद है? होप यू रिमेंबर इट. जी सर. Tell me, is it true that the inner electrons don't shield? Don't shield. The inner electrons don't shield. This is completely wrong, No right? sir, they shield. ये they shield यार. इनका काम ही यही है. और क्या काम है? What is the difference between nuclear charge and effective nuclear charge? Okay. ये भी पढ़ा था हमने. देखो, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फील करते हैं कि न्यूक्लियस वीक हो गया. Okay. मान लो न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था x, लेकिन क्योंकि बीच में रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है, तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स को वो x
पॉजिटिव चार्ज फील ही नहीं होता, उनको फील होता 0.9x मान लो। तो ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो फील हो रहा है अंदर एक्स चार्ज ही, लेकिन बीच में रिपल्शन बहुत सारी आ रही है क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स डू शील्डिंग। सो द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग बट द इनर चार्ज इज अट्रैक्टिंग। सो नेट अट्रैक्शन कम हो जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। वो जो नेट अट्रैक्शन होती है दैट इज बिकॉज ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। है तो उतना ही चार्ज, लेकिन वो अंदर वालों के लिए, अंदर वालों को बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन महसूस हो रही है, बाहर वालों को महसूस नहीं होती है। समझ आया? यस तो हमने उसका नया नाम रख दिया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई असरदार कितना है? इफेक्टिव का मतलब असरदार, असर तो कमजोर कर दिया ना आपने। यस यस। सही है? हाँ जी। ओके, एक काम करते हैं, लेट्स मीट एट 9:30 फॉर हाफ एन आवर एंड पिक अप वन प्रॉपर्टी डिटेल विद ग्राफ एंड ऑल दैट एंड क्लोज इट। तो डेली बेसिस पे वी विल मीट एट दैट टाइम, पिक अप वन प्रॉपर्टी, डिस्कस इट, और आपका रेगुलर तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा डिटेल में। फिर आधा घंटा एक प्रॉपर्टी लेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे, खत्म, चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं ये। ऐसे केमिकल करा दूंगा बॉन्डिंग। कि Q&A भी आपको समझ में आ जाएंगे, देखते कि करना क्या है। Q&A ये करा हुआ है, करा हुआ है, पहले ही पता होगा आपको सारा। बेसिकली आई एम डूइंग द केमिकल चैप्टर इन Q&A ओनली। और केमिकल बॉन्डिंग। वो भी वैसे ही करा दूंगा सेम। उसमें क्या है, सेम ही तो है वो, सिग्मा पाई, और उसके अंदर है क्या, सिग्मा पाई। और क्या है, और मोस्ट ऑफ दैट चैप्टर इज फिजिक्स, उसमें डाइपोल है, और है क्या उस चैप्टर के तो नहीं, अंदर, राइट? मेमोराइजेशन ज्यादा है, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाँ पढ़ लेंगे, तो क्या एमओटी। वेस्पर होगी, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, बेसिकली छोटा मोटा होगा। बट ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल का इतना कोई खास, इट्स नॉट दैट हार्ड। उसमें भी वही होने वाला है, हाई बॉन्डिंग के अंदर न्यूक्लियर डिस्टेंस, एनर्जी का फंडा, और पेयरिंग, डाइपोल मूवमेंट, मोस्ट ऑफ दैट इज लैटिस, फजान रूल, ये वो सब, इसेंशियली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। नाम दे रखे हैं कॉन्जुगेशन, ये वो जो भी आपने नाम रखना है, लेकिन जो वो है अपना बेसिक्स जो है उसके, pretty closely related to the concept of energy। वैलेंस बॉन्ड ही तो है सारे, और कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं? ठीक है शेयरिंग सर। होगी तो मतलब जो जो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है सर। और वो थोड़ा सा उसके ऊपर चार्ज दिखा देंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इट अट्रैक्ट्स, द बॉन्ड बनाता है लेकिन चोर है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे विल एट 9:30 एंड देन वी विल डिस्कस फॉर ओनली 30 मिनट्स so that you can sleep and then get up at the right time। तो I will not extend it beyond 30 minutes, that's all। 30 मिनट से बंदा मेंटली भी थकता नहीं है, ठीक है। नहीं तो थकावट हो सकती है ना। अभी वाइथ रात को 2 घंटे पढ़ना कैन बी टफ आफ्टर स्कूल एंड ऑल दैट। यस सर। चलो लेट्स मीट देन है। यस सर। सी यू सून, बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक बस।